Tri-City, look around you tonight. The energy in this room is electric. And why wouldn't it be? Today, we are celebrating not only businesses, we are celebrating legacies. We are celebrating visions. And we are celebrating the brands that have become a part of our lives. I am Jasmine, and it is my absolute honor to be your host for this extraordinary evening. News 18 and Marbella presents iconic brands of Tri-City powered by Reliance, health partner Paras Health Panchkula, salon partner Tress Launch. Today we bring together the pioneers of education, real estate, healthcare, hospitality, fashion, jewelry and so much more under one roof to salute the excellence that defines the region. A very special welcome to Mr. Jyoti Kamal, Managing Editor, News 18 India, our distinguished guest, our celebrated awardees, and to everybody who has journeyed here this evening to be a part of history. विरासत ऐसी कि नजरें थम जाएं, आधुनिकता ऐसी कि सपनों को पंख मिल जाएं। कुछ ऐसी है साटी ट्राई सिटी। चंडीगढ़ ट्राई सिटी जोश से भरी तरक्कियों की बुलंदियों को छूने वाला एक ऐसा हब जहां उम्मीद की डोर थामकर ऊंची उड़ान तय करते हैं हौसले। हुनर को बेहतर मौका देने वाले इस बिजनेस हब यानी ट्राई सिटी की कहानियों को हर घर तक पहुंचाता है भरोसेमंद और अग्रणी न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। एक ऐसा मंच जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इस रीजन की धड़कन को भी बयां करता है। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल लेकर आया है एक खास पहल, आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ ट्राई सिटी। एक ऐसा मंच जहां किया जाएगा उन फेमस ब्रांड्स का सम्मान जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लाखों लोगों के विश्वास, क्वालिटी और एक्सीलेंस की पहचान बन चुके हैं। रिटेल से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन से लेकर हॉस्पिटैलिटी और लाइफ स्टाइल से लेकर एंटरटेनमेंट तक ये ब्रांड्स ट्राई सिटी की विकास गाथा को नई दिशा दे रहे हैं। प्लीज वेलकम द आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ ट्राई सिटी। Ladies and gentlemen, every brand has a story, but behind every iconic brand, there is an iconic personality. Our first session celebrates exactly that. The glow that comes not just from appearance, but from confidence, discipline, and individuality. Welcome to our first session of the evening, the iconic glow. A conversation that beautifully blends beauty, fitness, and self-expression. In today's world, being iconic is not about perfection. It's about presence. And to take this conversation forward, I would like to invite my colleague, Mr. Umesh Sharma, on stage, a dynamic voice and a sharp mind who is all set with his questions and insights. Let's give a huge round of applause for Mr. Umesh Sharma. Now it's time to welcome our incredible panelists who truly define the iconic glow. Firstly, we have a multi-talented artist who seamlessly shines as a singer, actor and model. With a strong digital presence and brand collaborations, she has also made her mark in Punjabi cinema with films like Maud, and her passion for music has led her to create numerous Punjabi tracks. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for beautiful Naikra Tillon. Joining her is the epitome of fitness, grace and determination. She has been crowned as Mrs. Body Beautiful 2018, first runner-up Mrs. India 2023 and proudly holding the title of Mrs. Punjab 2024. Her journey is a powerful example of how dedication and self-belief can transform not just the body but the entire personality. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for this inspiring beauty, Mrs. Balreet Maan. With such
such powerful personalities on stage. I'm sure this session will leave us inspired. Over to you, Umesh. Let's begin this beautiful conversation. थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू। मैं जब बात करता हूं कि ब्यूटी की ग्लो, क्योंकि हमारा जो थीम है आइकॉनिक ग्लो, ग्लो आपके चेहरों पे है, ऐसा ही रहे। नायकरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो जितनी ऑडियंस बैठी है, सभी के ड्रीम्स होते हैं, सभी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बीटेक की स्टूडेंट आज बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही है। आप सिंगर भी हो, एक्ट्रेस भी हो, लेकिन बीटेक करते करते ये डेस्टिनी आपको कहां पे ले आई? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो अभी जैसे हमारे एंकर हमें बता रहे थे कि दिस इवनिंग इज टोटली अबाउट सेलिब्रेटिंग बिग ब्रांड्स, और हर किसी की मेहनत होती है और तभी खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। कैन आई स्पीक इन पंजाबी? ओके, बिकॉज ओके, सो इफ यू डोंट माइंड, मैं पंजाबी च गल कर सकती हाँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री, सो काइंड ऑफ प्रमोटिंग पंजाबी। सो गल इदा है कि मैं अपनी जर्नी एज अ बीटेक इंजीनियर स्टार्ट की सीगी। आई हैव स्टडीड बीटेक फ्रॉम LPU, मैं उत्थों दी पास आउट हैगी हाँ। ते आई हैव नेवर हैड अ थॉट दैट वन डे आई विल बी एन आर्टिस्ट एंड आई विल बी एन एक्टर और आई विल बी अ सिंगर, बट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आई हैड दैट ड्रीम कि वन डे आई विल परफॉर्म ऑन स्टेज। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਐਕਟਰ ਔਰ ਸਿੰਗਰ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਪਰਸੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ और एक मुकम्मल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। आई एम ऑन माई जर्नी। आपने पहली फिल्म मोड़ की थी, अगर मैं सही हूं तो। वो जो मोड़ आया आपकी लाइफ में, और जहां तक मैंने पढ़ा जाना आपके बारे में, सिंगर आपने गुनगुनाना शुरू किया। आप कहीं जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब, और शाम को शायद आप सिंगिंग भी करती थी। तो ये कैसे हुआ? और घर वालों को शायद पता नहीं था। यस, सरप्राइज ऐसे हुआ। सो द थिंग इज कि मैं कॉग्निजेंट में जॉब कर रही थी। मैंने CTS, यू हैव हर्ड दैट नेम, CTS कॉग्निजेंट। सो मैंने उसमें जॉब की एंड मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया था, बिकॉज यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज, हम सबकी यही थॉट प्रोसेस होता है कि यू नो हमारा बच्चा एक वाइट कॉलर जॉब करे, एंड दो सिंगिंग एंड दिस आर्टिस्ट जॉब इज ऑल्सो वाइट कॉलर जॉब, बट स्टिल दे वॉन्ट समथिंग कि जिसमें सैलरी जो हो फिक्स्ड हो। एंड आप सब पेरेंट्स हो, आप भी मुझे लगता है ये फील करते होगे कहीं ना कहीं कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो, एंड जैसे आपके पेरेंटल बिजनेस है उनको चलाएं, है ना। तो बट मेरे मन में पता नहीं कैसे ये थॉट आया, एंड मैं थोड़ी सी बगावती थी अपने बचपन में। मैं चीज़ों को लेके थोड़ा सा वापस से झूठ बोल देती थी, एक्चुअली शायद कभी कभी अभी भी बोल देती हूँ। सो अपने सपनों के लिए थोड़ा झूठ बोलना इज लाइक ओके। तो मैंने जब आई वॉज इन कोलकाता एंड मैं कॉग्निजेंट में जॉब कर रही थी, एंड देन आई यूज टू से लाइक मैं अपने पापा को बोलती थी कि मैं फ्री हो गई हूँ जॉब से एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मेरा एक शुरू से एक रूटीन है दैट मुझे अपने पापा को वीडियो कॉल करनी होती है अपनी फैमिली को। सो मैं नहीं बताती थी उनको, एंड मैं जाके कुछ कैफेज में परफॉर्म करती थी, बिकॉज यू नो जब आप पे कोई धुन सवार होती है देन फिर आप रुक नहीं पाते। सो सेम वॉज विद मी, और शायद वही स्ट्रगल आज आपके काम आ रहा है। यस दैट्स ट्रू। बलरीत मान, बलरीत, मैं अगर आपकी जर्नी को देखूं तो बीइंग ए मदर, आपकी डॉटर है, लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पंजाब की एक आम घर की लड़की, एक फिटनेस कोच, और एक ऐसे परिवार में आप आए और आपने अपने आप को फिटनेस के लिए समर्पित कर दिया। और मैं आपका अगर इंस्टाग्राम देख रहा था तो एज ए बिकनी एथलीट आपने परफॉर्म भी किया। ये हर्डल्स इतने उससे पहले आए होंगे जाहिर तौर पर आपकी लाइफ में, और बहुत कुछ सोसाइटी में बोला भी जाता है, बट आपने सोच लिया था कि नहीं, मुझे फिटनेस पे काम करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड भी एक जाने माने फिटनेस कोच रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ कि ये प्यार हुआ था दोनों में, या कैसे मिले थे आप? सबसे पहले थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी हेयर। सो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਮਦਰਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਲਾਈਕ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਿਨੀ ਪਾਣਾ, ਲਾਈਕ बोल्ड चीज़ां थोड़ियां जिहा यू नो लाइक हजे भी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ कल्चर है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी डॉटर हुई, लाइक मी एंड माई हस्बैंड, लाइक बैक टू माई हस्बैंड, सो लाइक वी बोथ लाइक स्टडीड टुगेदर एंड देन मैरिड इन 21 years old।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਮੈਂ ਮਦਰ ਬਣੀ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਫਿਟਨੈਸ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬੋਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੀਨੀ ਪਾਣਾ, ਬਿਕੀਨੀ ਐਥਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨੋਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। सो फिटनेस मेरे लिए वो चीज थी, बिकिनी एथलीट बनना, ब्यूटी पीजेंट करना, ये सारे बाय प्रोडक्ट रहे ने। फिटनेस सभी करते हैं रूटीन में, हम जिम जाते हैं कि अपना ठीक रहें, लेकिन वो पैशन में क्रिएट होना और प्लस आप कंपटीशन के लिए जाना, वो मैं देखता हूँ बॉडी बिल्डर्स को या फिटनेस जो फ्रीक होते हैं, क्योंकि विमेन फिटनेस एक अलग लेवल पे है। पानी नहीं पीना, वो कार्बोहाइड्रेट्स इतने लेना 500 ग्राम, वो पूरा एक पैट सेट होता है, एक पैटर्न होता है। वहां तक आप कैसे पहुंच गए? ठीक है कि फिटनेस आपने कर ली, आपने अपने शरीर को अच्छा रखना है, एवरीबॉडी वांट्स के ठीक है वो फिट रहे, बट वो कंपटीशन तक जाना, वो बिकनी एथलीट, फैमिली में किसी ने इन लॉज में बोला होगा कि हाँ जी साड़ी बहू की कर रही है? हाँ जी, सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। जब मैं फिटनेस स्टार्ट की सी ना, मैं अपने हस्बैंड पूछती सी यार ये कदों खत्म होएगा, लाइक महीना 2 महीना 3 महीना मैं फिट हो जाऊंगी, फिर मैं इदा मिन के खाना तो नहीं खाऊंगी, हर मील ते ध्यान तो नहीं करूंगी। बट इवेंचुअली मैं देखा कि असी जिदा रोज नहाने हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, हेल्दी खाना खाना वही चीज है, ये हमेशा ही चलती रहेगी। सो असी फिटनेस ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ डिटॉक्स डाइट खानी है, यू नो लाइक एग्जॉटिक वेजिटेबल्स खाने हैं, सौंफ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ है। नहीं, फिटनेस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ लॉन्ग टर्म चीज चलनी है वही है जो ਅਸੀਂ खा रहे हैं, बट पोर्शंस कंट्रोल करके खाना है ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ कंसिस्टेंटली करना है, लाइक डेली बी प्रेजेंट, बी कंसिस्टेंट। सो इसलिए ਇਹ लाइक इंटरवल्स विच नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है फिटनेस की। तुसी लाइफ लॉन्ग जर्नी करते रहने हो ना फिटनेस की, उस तो बाद कॉम्पीटिशनस करने, ये चीज़ां करनियां तो थोड़ा लाइक शौक जिहा रह जाता है बाय साइड्स से। बाकी जिदा इन्होंने इन लॉज की गल की, सो लाइक मेरे फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ ने, आई एम द ओनली वुमन इन द हाउस व्हेन आई गॉट मैरिड। सो यस, आई एम लाइक पैम्पर्ड बाय देम, एंड प्लस उन्होंने सी के जो करो ना लाइक 100% दे के करो। सो दैट वाज द एक्चुअली अ बिग सपोर्ट फ्रॉम देम आई हैड। गुड। नायकरा, क्या आपका नाम नायकरा है? नायकरा है, बट मेरा नाम कुछ और है। मैं आपको बताता हूँ, ऑडियंस बड़ा इंटरेस्टिंग ये इसलिए है कि हमारे सामने नायकरा हैं, लेकिन नायकरा ने जो अपना नाम रखा उसके पीछे भी कहानी है, फिल्मी कहानी है। नायकरा मुझे लगता है शेयर करना चाहिए आपको, जो जितना मैंने पढ़ा है। सो मैं ना अपनी टीम नाल डिस्कस करदी आ रही सी हुणे कार विच, देखियो मैंने क्वेश्चन पक्का पूछणगे। सो आई वाज टोटली वेयर। मैं हर एक इंटरव्यू च दस्सिया एक्चुअली मेरा घर दा नाम है नवदीप, ਤੇ ਨਾਇਕਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਮਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਜਲ ਪ੍ਰਿਆ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਂਜਲ ਪ੍ਰਿਆ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੀਗ ਅ ਜੈਨਜ਼ੀ, ਯੂ ਨੋ, फादर मदर मेरे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ते एक्टिव ने, एंड दे यूज टू, यू नो, स्टॉक की कर रहा है बच्चा, की कर रहा की पा रहे। सो मैं इसलिए अपना नाम नायकरा उधर रखा। नायकरा इज बेसिकली इट्स नॉट अ नेम, एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड विच नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स एन एब्रीविएशन। मैं अपनी पूरी फैमिली दे इनिशियल्स नाल नाम बनाया, लाइक नवदीप। पूरी फैमिली से एक नाम चुराया? हाँ जी। सो मैं नवदीप, पापा इकबाल सिंह पापा जी का नाम है मेरे, एंड मम्मा रविंदर कौर, एंड विच मेरे ब्रदर सिस्टर का नाम भी आ जाता है N and A, नवनीत, अर्शदीप। सो मैं इदा अपनी पूरी फैमिली ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हाँ अपनी फैमिली ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ मैं उन्होंने बहुत घट दसदी हाँ, बट आई एम रियली क्लोज टू माई फादर। एंड जब मैं स्टार्ट कर रही सी, यू नो, छुप के वीडियोस पाना, मतलब वीडियोस इन द सेंस कि मैं सिंगर हाँ, सो मैं वीडियो सिंगिंग करके पाਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, बट एंड देन मैं ये नाम रखा नायकरा। सो नाउ नायकरा। अच्छा, आपने पहला गाना कौन सा गुनगुनाया था जो आपको अभी भी फेवरेट, अक्सर आप गाड़ी में गुनगुनाते हो, सुनते हो? बहुत से सॉन्ग्स नेगे ते नहीं, मैं यहाँ पे जो सुनना चाहते हैं हम, इसलिए मैंने अच्छा आपको कहा। मैं तो बहुत सॉन्ग सुना के, आप मैं सुना दीजिए ऑफ कोर्स फिर। मैं बहुत बड़ी लिस्ट बिल्कुल। लेके आई हूँ, बट मैं जब स्टार्ट किया अपना करियर, नॉट इवन करियर, मैं जब ये रियलाइजेशन हुई मैनू कि मैं गा सकती हाँ, मेरे फादर यूज टू, यू नो, सिंग सम लाइन्स, और मेरे पापा की आवाज़ बहुत अच्छी है।
ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा if you can clap please Yes, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था सो ये मेरी मेमोरी क्या बन बात गई है। सो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम दिस सॉन्ग अच्छा आप जब इस लाइन में आए क्योंकि बहुत चैलेंज है हर एक इंडस्ट्री का एक चैलेंज होता है खासकर हर फ्राइडे किस्मत बदलती है हर फ्राइडे लाइफ चेंज होती है मोड़ के बाद आपकी और फिल्म आई 2-3 फिल्म आपकी कर चुके एमी विर्के से आपने मूवी की अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स ऑस्ट्रेलिया प्रमोशन के लिए गए सच में एक सवाल बड़ा मतलब ये टीआरपी लेके नहीं मैं वैसे पूछना चाहता हूं कि एक आर्टिस्ट के मन में रहता क्या है कि वो इतना चल गया वो मूवी इतनी चल गई ये प्रेशर भी रहता है अपने आप को साबित भी करना है प्लस बने भी रहना है उस फील्ड में बहुत बड़ा चैलेंज है हाय रब्बा मैं तो स्टिल सीख रही हाँ बट दैट्स वेरी ट्रू हर फ्राइडे मतलब मेरे ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੌਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲ ਪਵੇ ਹਨਾ ਸੋ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਦੈਟ ਲਵ ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ इट्स वेरी टफ एक्चुअली बट ठीक है इट्स हैपनिंग और बाय गॉड्स ग्रेस यूज्ड टू आई एम यूज्ड टू या बलरीत जैसे आपने कहा कि आपने तो ट्रांसफॉर्म कर लिया आपके पास काफी सीखने भी लोग आती हैं खासकर जैन जी की बात करें क्या रहता है उनका मोटिव सिर्फ 2-4 महीने फिट रखना है और मैंने देखा कि रील का जमाना है तो इंस्टाग्राम के लिए रहना है या कोई पैशनेट होता है क्योंकि बिकनी एथलीट इंडिया में हैं चंडीगढ़ में भी हैं स्टार्ट हुआ बट सिर्फ वो लेवल है या सिर्फ फिटनेस के लिए कि ठीक है मुझे फिट रहना है और आपसे टिप्स लिया और 2-3 महीने चले गए या वो कंटिन्यूटी में रहती हैं कि हाँ उनको है फिटनेस के लिए कि मुझे ये कंटिन्यू करना है ਵੈਸੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 80s ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਲਾਈਕ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸੋ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ so they are more oriented towards the looks ਕਿ ਲੁੱਕਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਬਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੀਲ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਨੇ ਸਾਰੇ बट मैं ये कहूंगी कि जेडे मेरे क्लाइंट्स लाइक 40s ने दे आर मच कंसिस्टेंट एंड दे आर लाइक पुटिंग मोर एफर्ट्स देन देम आप कितना फोन यूज करती हैं और अपनी बेटी को आप क्या रोकती हैं मैं फोन ज्यादा नहीं यूज करती लाइक ये मैंने इसलिए पूछा कि जब मैंने आपको कॉल किया तो आपका मैसेज आया कि आई एम इन जिम कॉल यू आफ्टर 2 hours
हाँ जी, मैं सेशंस ले रही थी उधर ना, तो तब तक आप बहुत कम हो गया। हाँ 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 सो ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਟ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿਫਤ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ So they are more keen to use phones, but yes, वही चीज़ा you need to build things for them to distract. नायका इधर फोन कम यूज करते हैं आपका मुझे लगता है फोन के बिना काम ही नहीं चलता होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मैं हुणे रिसेंटली 1 महीना होया मैं वो ऐप लिमिट लाई हुई है बट स्टिल आई डू इग्नोर 15 मिनट्स सो आई डू दैट बट स्टिल मैं हुण ऐप लिमिट लाई हैगी है जिवें तुसीं कह रहे सी बिल्कुल ट्रूथ है क्योंकि हुण अजकल मैनूं लगदा है कि शोबिज बिजनेस इज लाइक all on Instagram now ਸਾਨੂੰ up to date ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ and we need to find the reels we need to find the trends ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ऑफ कोर्स अच्छा अभी आप ऑस्ट्रेलिया जब जाने लगे तो इधर ईरान और जो वार चल रहा था तो वो मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों का रीशेड्यूल हुआ आप जिस इंडस्ट्री से हो अब बाहर के शूट्स नहीं हो पा रहे थे तो मैं पढ़ रहा था कि तुसी किवें पहुंच गए इन्ने लड़ाई च ऑस्ट्रेलिया में कि एक नीचे कमेंट पढ़ रहा था तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि डिसाइडेड था जाना था या उसको आप टाल सकते थे लड़के ही पहुंच गए नहीं ये डिसाइडेड सीगा पंची टू मेरी मूवी आई है चौपाल ऐप ते इफ यू गाइस फॉलो चौपाल ते उत्थे मेरी पंची टू मूवी आई है और प्रिंस कंवलजीत सर दे नाल ही इज अ लेजेंड ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री मैनूं लगदा है नसीरुद्दीन शाह नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्हां दे लेवल मतलब साडे पंजाब दे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੌਪਾਲ ਐਪ ਨਾ ਹਜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੌਪਾਲ ਐਪ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਛੀ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਚੌਪਾਲ ਸੋ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੋ उदा कुछ इफेक्ट नहीं आया उससे अच्छा मैं देख रहा था एक जैस्मिन सैंडलर्स का सॉन्ग बड़ा आप गुनगुना रही थी और उसके ऊपर काफी रील्स आपने बनाई तो एक बार जरा वो 2 लाइनें भी हो जाएं बदला च डिगदे हंजू अख मेरी फिर भी रोई ना ऐसी प्रीत लाली रब्बा जैसी फेर कदे हुई ना तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना सारा शहर बेगाना इत्थे मेरा कोई ना फिर प्रीत किसे दे नाल कदे हुई ना जमाना जालिम तावी सोई ना सारे रंग देख ले हुण कोई डर नहीं जोंदी रू आशिकी एक दिन मुकनी भावे तुरी दी रवा मिलना वे करनी इत्थे ना कोई दिल दी मनदा सानू सारियां विसर गईयां रावा वे केड़े पासे जाइए सजना सानू सारियां विसर गईयां रावा वे केड़े पासे जाइए सजना केड़े पासे जाइए सजना बहुत खूब वाकई तालियों की गड़गड़ा बता रही है कि आपका जो जुनून है वो बढ़ता जा रहा है बलजीत मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा आपने कहा कि बहुत चैलेंजिंग रहता है इस फील्ड में आना हर कोई नहीं एक्सेप्ट करता मैं देख रहा था कि जो बिकनी एथलीट्स इंडिया में जो खासकर एक कैटेगरी होती है और वर्ल्ड पे हमारी लड़कियां भी compete करने जा रही हैं क्या एक अभी भी माइंडसेट उतना क्लियर हो पाया एक फैमिलीज के लिए एक समाज के लिए क्योंकि जब आप कोई रील डालते हो कोई फोटो डालते हो तो कई बार ऐसा डिस्टर्ब हुआ आपको कि कमेंट्स आपने नहीं देखे या इग्नोर करने पड़े ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਮ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੀਤੂ
ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਬਿਕਿਨੀ ਲਾਈਕ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਊਟੀ ਪੀਜਨ ਦੁਬਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਿਕਿਨੀ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਮ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੰਪੀ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਕ ਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮਹਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਦਰ ਲਾਈਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨਹੈਂਸ ਇਟ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਔਰ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਕ ਔਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੇ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ 150-200 ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 3 ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਡਨੈਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਔਰਾ, योर एनर्जी एंड वट यू वांट टू प्रिटेंड हु यू आर। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खासकर इस स्पेशल इस फील्ड में, क्योंकि हम रूटीन की एक डाइट अलग होती है, लेकिन आप लोगों के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप नेचुरल डाइट लेती हैं या फिर वो हमेशा ये भी एक मिथ है कि प्रोटीन ये नहीं लेना ऐसे हो जाता है, ये एक बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं इसको, बट आप किस चीज में बिलीव करते हो, नेचुरल डाइट? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਪਾਈਕ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਸ एंड लो ऑफ प्रोटीन डाइट। सो एक्चुअली जी डाइट है मैक्रोस ने साडे प्रोटीन फैट्स एंड कार्ब्स, सो एवरीथिंग शुड बी लाइक जो भी लेना है दिन च वो पर डे हर एक दा मेजर्ड हुंदा है कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इन्नी है, थोनों इन्ना प्रोटीन खाना है, मैं हैवी वर्कआउट ला रही हूँ मैं इन्ना प्रोटीन ते कार्ब्स खाने ने। सो बाकी आपां नैचुरल ते अननैचुरल दी गल करिए तो प्रोटीन पाउडर नूं लैके लोग कह दिंदे ने, ये भी हम चीज क्लियर हो चुकी है कि प्रोटीन पाउडर कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। सो कि एक केजिन है मिल्क दा प्रोडक्ट बनया हुआ एक ड्राई मिल्क दा, दैट्स द प्रोटीन। सो जे तुसी वेजिटेरियन हो, कीटो डाइट चो या लाइक वीगन हो, थोड़ा प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा, देन यू कैन हैव अ प्रोटीन पाउडर अच्छी कंपनी दा। अदरवाइज आई रिकमेंड, मैं पर्सनली एग्स, चिकन, फिश लाइक नॉन वेज ते अपना प्रोटीन पूरा कर लेनी है। So कौन सी ऐसी चीज है जो आपने काफी सालों से नहीं खाई और आपकी फेवरेट थी, छोड़नी पड़ी आपको? छोड़िया तो इस तरह कुछ नहीं है, यही तो लाइक बोनस है साडी डाइट का कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਾਈਟ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਾਦੇਸ਼ਮਾਨ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਪਾਸਤਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸੈਲਡਸ। ਸੋ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਈਟਿੰਗ एवरीथिंग बट कंट्रोल इन लिमिट, पोर्शन कंट्रोल्स। सो इस तरह कुछ नहीं है कि मैं कुछ छड्या है। नायकरा, आपका वेट देख के लगता है कि आप भी वही पूरी डाइट मेंटेन आपने की हुई है, सिंगर एक्टर के लिए तो बिल्कुल रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज ये मैंने बहुत देखी है हमारी इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में, बॉलीवुड और बॉलीवुड में बॉलीवुड का दबदबा, चाहे धुरंधर हो या कोई मूवी हो, हर एक बिना पंजाबी सॉन्ग के मूवी नहीं आती। कितना बड़ा एडवांटेज ये लग रहा है आप लोगों को कि बहुत रास्ता आसान हो गया है, हालांकि पहले से कॉम्बिनेशन था, तो अब से देखते हो कि एकदम से रातों रात बंदा स्टार बन जाता है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਐਂਡ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੌਂਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ मैं बहुत थैंकफुल हाँ सारे सारे लेजेंड आपने आर्टिस्ट। कहा आप न्यू कमर हैं, इतने साल आपको आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं, हाँ सो जी। आप अभी भी रियाज करती हैं, एक्टिंग क्लासेस आपकी चल रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन सा आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है जो आपको जिनको लगता है कि आप उन जैसा एक्ट करना चाहेंगे? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਐਕਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਐਂਡ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵरेट, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ अच्छा, जब कोई सीन ऐसा होता है जिसमें रोना है तो आपका मैंने मोड में देखा था कि वो आपको ग्लिसरीन यूज करनी पड़ी थी या आप उस मोड में चले जाते हो, उस जोन में जाते हो, पहले थोड़ा टाइम उदास होना पड़ता है? ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੁਝ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਿਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਿਗਿਨਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗਲਿਸਟਰੀਨ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ 100% ਗਲਿਸਟਰੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, जब डिमांड होती है तो लेनी पड़ती है। अच्छा, जब मूड उदास होता है, उदासपन जब आता है, तो वो कौन सा सॉन्ग है जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा रिफ्रेश करता है? There are a lot of songs. Okay. क्योंकि मैंने सुनना जरूर है तो मैं उस मोड पे आगे आपको पूछना चाह रहा था। कोई भी आपको लगता हो जो आपको सैड, मुझे सैड नहीं, मतलब जो आपको लगता है कि उदासी है लेकिन आपको वो सॉन्ग रिफ्रेश फील कराता है। रिफ्रेश फील कराता है। अच्छा, there are a lot of songs जिਵੇਂ कि जी हो जाए फिर। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ Song ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। Song ਰਿਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਆਪਣਾ Song ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ Song ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਲਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜੀ ਨਾ ਵੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत आपकी आवाज में जो एक जादू है, खनक है, और ऐसे ही रहे। बलरीत जी, आप भी सॉन्ग मूवीज देखते होंगे, आपको शायद कोई ऑफर भी था सॉन्ग का, क्योंकि हमने देखा कि ये कनेक्ट है फील्ड कि जो मॉडलिंग करते हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, उनको सॉन्ग के लिए ऑफर आता है। जैसे मैं हरमिलन बैंस से बात कर रहा था, एशियन मेडलिस्ट है हमारी एथलीट, उनको भी पंजाबी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। सो ये एक कनेक्ट फील्ड है, तो आपको कोई ऑफर इस तरह से आए और आपने ना की हो, या कैसा रहा था वो कि मना करना पड़ा या आप करना चाहते थे? ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਆਫਰ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ Song ਮੂਵੀ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਰਕਆਊਟ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ, ਸਮਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਆਈ ਹੈਡ ਸਮ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟਟੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡਾਟਰ। But she can still do it. Like, I mean, she looks so fit, right? So I had offers like after the competition, but like nahi. So that's not my cup of tea. But thank you. अच्छा, जो जनरेशन आजकल की आपके पास आती है सीखने, कितना उनका मेंटल स्ट्रांगनेस कितनी है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक
जिम में जाके और लगातार 5-5 साल वो करना, तो कितना आप उसको देख पाते हो, चाहे वो जेंजी हो या वो 30+ हो? ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਡਿਡ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ, ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਨਰਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਡਾਟਰ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਸ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵंस यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जाते हैं जिम? हमारे यंग जनरेशन या जो भी बैठा हो, हाथ खड़े करके बताएंगे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 not bad, 6 not bad। परसेंटेज बाकी वॉक वाले भी होंगे आई एम श्योर। ठीक है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ फिटनेस। नायकरा, ये फिटनेस और आप लोगों की लाइफ का भी मेन पार्ट है। अच्छा, आपको एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है या गाना ज्यादा अच्छा लगता है? गाना 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 गाना, क्योंकि मैं कदी नहीं सोचा सी कि मैं एक्टर बनूंगी, बट मैं ये शुरू तो सोचा सी कि मैं सिंगर बनना चाहती हाँ। तो सिंगिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਜ਼ ਸੂਦਿੰਗ। यस। तो आप इंस्ट्रूमेंट भी प्ले, आई थिंक हारमोनियम? हाँ जी, हारमोनियम कर लेंदी है मैं, हौले सीख रही हूँ मैं। अच्छा। बट थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। तो क्या आपको सूफी, आपका जोनर जो है वो हर एक तरह का होता है या रोमांटिक सॉन्ग है? वैसे मैं शुरू ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗਸ ਗਾਏ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੜਕਦਾ ਫੜਕਦਾ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਸੋ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, मेरा सॉन्ग आने वाला है मे बी दिस मंथ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 18 ਕੋਕੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਪਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੁਸਨ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਜੱਟੀ ਦੀ, ਜੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ, ਫਿਰੂਗੀ ਮੰਡੀਰ ਘਬਰਾਟ ਮਾਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੂਗੀ ਜੱਟਾ ਲਾਟ ਮਾਰਦੀ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾ ਖੜ ਗਈ ਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਕੋਕੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਜੱਟਾ ਜੜਦੀ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਟੀ ਖੜ ਗਈ ਤਾਂ ਖੜ ਗਈ ਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਕੋਕੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਜੱਟਾ ਜੜਦੀ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਟੀ ਖੜ ਗਈ ਤਾਂ ਖੜ ਗਈ ਵੇ। थैंक यू बहुत अच्छे, क्या बात। तो फाइनली अब आपकी जो मूवी आने वाली है, क्या डिफरेंट है उसमें? हर एक रोल एक चैलेंज होता है और स्किल वाइज भी अपने आप को कलाकार चाहता है मैं उससे बेटर करूं पिछली मूवी से। हाँ जी, मेरी कुछ मूवीज हैगियां ने, जिवें कि हुण रीसेंटली हुण चढ़दी कला दा आपां टीजर देखिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੌਪਾਲ ਤੇ। ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੌਂਗਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, बट बिल्कुल। Thank you. इससे पहले के सेशन खत्म करें, बलदेव जी क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे यूथ को, खास करके फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। सो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी लाइक किड्स ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਥਲੀਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਰ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੋਮਾਸ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਾਈਕ
हैंड टू हैंड चलदी है मेंटल हेल्थ ते फिटनेस दोनों चीज़ां द मोर यू आर लाइक एग्जॉस्ट योर बॉडी द मोर यू आर लाइक क्लीयर फ्रॉम योर माइंड सो इसनों एक रीजन लैके चलो एक रिलीजन लैके चलो गुरुद्वारे रोज जाने हैं लाइक ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲ ਸੋ ਜੇ ਬੋਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ नायकरा वैसे दिल नहीं कर रहा थानू सुनी जावे मैं चाहना इस सेशन का जो हम खत्म करें आपके एक अच्छे और इस तरह से दमदार आवाज के साथ गुनगुनाते हुए ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਸੋ ਇੱਕ Song ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ Song ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਫ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਨਗੁਨਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ कलियां गुजारो कि रातां कालियां ढंग दिया मैनू रुतां प्यार वालियां कलियां गुजारो कि रातां कालियां ढंग दिया मैनू रुतां प्यार वालियां तेरे बाजू जी नहीं लगदा तेरे बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर गई आजा सोने कर आजा सोने आजा सोने थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बलरीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नायकरा आपका ओवर टू जैस्मिन Thank you, Umesh. Thank you so much. Thank you so much, Naikra. Thank you so much, Balreet. Such a beautiful, melodious session it was. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for our panelists. इन्हें सोने सोने गाने सुनाए ने जोरदार ताड़ियां बन दिया ने. Thank you so much. And now I would request our panelists to please stay on the stage, and I would like to request Mr. Jyoti Kamal, Managing Editor, News 18 India, and Sardar Jagmeet Singh Jaggu, Region Head, News 18 Network, to please come upon the stage and also I would like to call upon stage Mr. Rajesh Walia, Director Marbella Group, to please come upon the stage and do the honors. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our dignitaries. Thank you so much to our guest. And this was a beautiful session. Thank you so much, Balreet. Thank you so much, Naikra. I would request our dignitaries to please stay on the stage. Let's give a huge round of applause for Balreet Man. Thank you so much. I would request our dignitaries to please be on the stage. Thank you so much to the panelists. So now we will move forward to the brands, because this evening is dedicated to you all, the iconic brands of Tri-City. So first of all, I would like to invite on stage Tress Launch, but before I invite them on stage, we will see their beautiful journey. I would like to tell you all that Tress Launch is recognized as North India's trusted family salon. It is a beautiful legacy. I would request you all to please have a look at this beautiful journey. ब्यूटी सिर्फ दिखने की नहीं, फील करने की बात होती है। ट्रेस लाउंज ने इसी फीलिंग को लग्जरी एक्सपीरियंस में बदल दिया है।
2003 में मुनीश बजाज के विजन से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नॉर्थ इंडिया में प्रीमियम ब्यूटी और लाइफस्टाइल का एक रिनाउंड नाम बन चुका है। हेयर, स्किन, मेकअप से लेकर वेलनेस थेरेपीज तक हर सर्विस यहाँ एक एरोमेटिक इंडल्जेंट जर्नी का हिस्सा है, जहाँ आप सिर्फ ग्रूम नहीं होते बल्कि ट्रांसफॉर्म होते हैं। 80+ लग्जरी सैलून्स और अनमैच्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ ट्रेस लाउंज हर विजिट को बना देता है ट्रूली स्पेशल। आज लग्जरी, स्टाइल और सेल्फ केयर के इस बेंचमार्क को सेलिब्रेट करते हुए इट्स आवर ऑनर टू मेक ट्रेस लाउंज एज आइकॉनिक ब्रांड ऑफ ट्राई सिटी। Ladies and gentlemen, I would like to call upon stage Mr. Manish Bajaj and Mrs. Shalu Bajaj, founder and managing director, Tress Lounge. Let's give a huge round of applause for our awardees, ladies and gentlemen. Thank you so much. Moving forward to our next brand. This brand is recognized for excellence in transforming brands through creative marketing. Ladies and gentlemen, I'm talking about Lead Magnet. This brand is making everybody a brand. Before I call them upon stage, let's have a look at their journey. डिजिटल दुनिया में सिर्फ प्रेजेंस नहीं, इम्पैक्ट बनाना जरूरी होता है। डॉक्टर जोगिंदर सिंह बेदी ने इस इम्पैक्ट को अपनी पहचान बनाया है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल डॉक्टर, ऑथर एंड अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटियर के रूप में उन्होंने बिजनेसेस को सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि स्पॉटलाइट में लाने का काम किया है। एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लीड मैग्नेट, उन्होंने 40+ ब्रांड्स को डिजिटल स्पेस में ग्रो करने, स्केल करने और डोमिनेट करने में मदद की है। फ्रॉम सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू परफॉर्मेंस एड्स, कंटेंट एंड फुल स्केल प्रोडक्शन, यहाँ हर सॉल्यूशन एक ही गोल के साथ आता है, टू गेट यू नोटिस्ड। आज इनोवेशन और डिजिटल एक्सीलेंस के इस इम्पैक्टफुल जर्नी को सल्यूट करते हुए इट्स आवर ऑनर टू मेक लीड मैग्नेट एज आइकॉनिक ब्रांड ऑफ ट्राई सिटी। Ladies and gentlemen, I would like to call upon stage Dr. Joginder Singh Bedi, Director, Lead Magnet. Let's give a huge round of applause for the awardee. One of the iconic brands of Tri-City, Dr. Joginder Singh Bedi, Director, Lead Magnet. Let's give a huge round of applause. Moving forward to our next brand, this is a fine cuisine bar recognized for excellence as Tri-City's elegant fine dining destination. Ladies and gentlemen, in the era of modernization, we all love to go out to have good destinations to eat with our friends and family. Melia is providing that, so let's give a huge round of applause for this brand. But before I call them on the stage, let's see their journey. डाइनिंग सिर्फ खाना नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो याद रह जाता है। मेलिया चंडीगढ़ ने इसी एक्सपीरियंस को एक नई पहचान दी है। यहाँ हर डिश सिर्फ टेस्ट नहीं, एक क्राफ्टेड मोमेंट है, जहाँ फ्लेवर्स, एम्बियंस और सर्विस मिलकर एक परफेक्ट एस्केप क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट लाइटिंग, रिफाइंड सेटिंग और थॉटफुली क्यूरेटेड मेन्यू के साथ मेलिया चंडीगढ़ ने फाइन डाइनिंग को एक एलिगेंट जर्नी बना दिया है। ये सिर्फ डिनर नहीं, ये इंडल्जेंस है। ये सिर्फ आउटिंग नहीं, ये कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जो बनाता है मेलिया को आइकॉनिक डाइनिंग डेस्टिनेशन ऑफ ट्राई सिटी। आज इस एक्सेप्शनल डाइनिंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी को सेलिब्रेट करते हुए इट्स आवर ऑनर टू रिकॉग्नाइज मेलिया चंडीगढ़ एज द आइकॉनिक ब्रांड ऑफ ट्राई सिटी। I would like to take the opportunity to call upon stage Mr. Tanish Bajaj, Director Melia, the Fine Dine Cuisine Bar. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Mr. Tanish Bajaj.
Congratulations to the awardees. Moving on, I would like to come upon the next brand. This brand is recognized for excellence in strategic real estate development solutions, ladies and gentlemen. I'm talking about Epic Real Ventures. Let's have a look at their story. रियल एस्टेट सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम नहीं, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी और विजन का नाम है। हिमांशु पंत जी ने इस विजन को रियलिटी बनाया है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, रेरा बैक्ड प्रोसेसेस और स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के साथ ये ब्रांड हर क्लाइंट को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन देता है। Recognized for excellence in strategic real estate development solutions, Epic Real Ventures ने शॉर्ट स्पैन में ही अपनी एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल पहचान बना ली है। और जब एक विजनरी फाउंडर हिमांशु पंत का नाम फोर्ब्स इंडिया जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर फीचर होता है, तो ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं, क्रेडिबिलिटी का बेंचमार्क बन जाता है। साथ ही न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा 2025 में फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म के रूप में रिकॉग्निशन इनकी रैपिड ग्रोथ को डिफाइन करता है। आज इतने छोटे से सफर में इतनी बड़ी पहचान बनाने के लिए इट्स आवर ऑनर टू मेक एपिक रियल वेंचर्स एज आइकॉनिक ब्रांड ऑफ ट्राई सिटी। Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Epic Real Ventures, and I would like to take the opportunity to call upon stage Mr. Himanshu Pant, Managing Director, Epic Real Ventures. Please give a huge round of applause for Mr. Himanshu Pant, Managing Director, Epic Real Ventures. Congratulations to the awardees. Moving forward, I would like to talk about this brand, which is also our health sponsor. This brand is recognized as the most promising transplant center of Tri-City. I'm talking about Paras Health. Let's look at their story. जब बात हो हेल्थ केयर की, तो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ट्रस्ट भी जरूरी होता है। पारस हेल्थ पंचकुला ने इसी ट्रस्ट को अपनी पहचान बनाया है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और 68 एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के साथ यहाँ मिलती है एडवांस टर्शरी केयर, कार्डियो से न्यूरो, ऑन्कोलॉजी से गैस्ट्रो तक, हर स्पेशलिटी एक ही छत के नीचे। 250 बेड्स की कैपेसिटी और 24/7 इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज के साथ हर क्रिटिकल मोमेंट में ये हॉस्पिटल रहता है आपके साथ। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है एक्सीलेंस, कंपैशन और पेशेंट फर्स्ट केयर का। आज ट्राई सिटी के मोस्ट इमर्जिंग ट्रांसप्लांट सेंटर को सैल्यूट करते हुए इट्स आवर ऑनर टू रिकॉग्नाइज पारस हेल्थ पंचकुला as the iconic brand of Tri-City. Ladies and gentlemen, I would like to call upon stage Dr. Pankaj Mittal, Facility Director, Paras Health Panchkula, and Mr. Vineet Agarwal, Group COO, Paras Health. Let's give a huge round of applause for the awardees. Paras Health, recognized as the most promising transplant center of Tri-City. Ladies and gentlemen, we'll continue meeting the brands of Tri-City. After the session, I am extremely grateful to our dignitaries, Mr. Jyoti Kamal, Managing Editor, News 18 India, Mr. Jagmeet Singh Jammu, Region Head, News 18 Network, and Mr. Rajesh Walia, Director, Marbella Group. Thank you, sir.